Good morning, students. Today, let's come to know about the parts of main memory or primary memory. In the random access memory, RAM is also called random access memory. The memory cells can be accessed for information transfer from any desired random location, right? That is, the process of location a word in memory is the same and requires an equal amount of memory. Thus, the name random access. You can read as well as write in RAM. The main drawback of RAM memory is that it is volatile memory. As I told you about the volatile memory, कि जब तक पावर आपकी ऑन है डाटा उसके अंदर रहेगा, जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगी सारा डाटा वॉश आउट हो जाएगा. That is, when the power gets off, the contents of RAM gets erased. Next thing is ROM, यानी कि रीड ओनली मेमोरी. रैम आपने देखी होगी कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है, राइट. इट्स कम इन द डिफरेंट साइज, राइट. 2 GB, 4 GB, 8 GB, right. Read only memory. As the name implies, the read only memory ROM is a memory unit that performs the read operations only. It does not have a write capability. This implies that the binary information stored in a ROM is made permanent during the hardware production of the unit and cannot be altered, means change, by writing different words into it. It is non-volatile, whereas a RAM is general purpose device whose content can be altered or changed during the computational process. A RAM is restricted to reading words that are permanently stored within the unit. Sorry, a ROM is restricted to reading words that are permanently stored within the unit. ROMs are used for applications in which it is known that the information never needs to be altered. For example, a monitor program controlling a machine, these however are slower than RAM. तो रोम में क्या होता है कि डाटा एक बार लिख दिया जाता है और वो हमेशा स्टोर रहता है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट. सो रैम में हम डाटा चेंज कर सकते हैं, रोम में डाटा चेंज नहीं कर सकते. सो दीज आर द रैम एंड रोम. नेक्स्ट थिंग इज कैश मेमोरी, pronounced as cache. The cache memory is a special high-speed storage mechanism. It can be either a reserved section of main memory or an independent high-speed storage device or even on CPU chip. Whenever some data is required, the CPU first look in the cache. If it is there or not. If the data is found in cache, CPU does not access main memory and hence the process becomes very fast. If the required data is not found in cache, CPU reads it from main memory and loads it in cache. तो cache memory जो है वो बहुत fast होती है. When data is found in cache, it is called a cache hit, and the effectiveness of the cache is judged by its heat rate. 95% of time the processor is working, it is accessing information from cache memory, right. The cache memory is a high speed memory available inside CPU in order to speed up the access to data and instructions stored in RAM memory, right. Next is hard disk.
एज यू नो हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में लगी हुई होती है, डिफरेंट साइज़ की होती है। सपोज 320 GB, 500 GB, 1 TB, 80 GB, बहुत पहले 80 GB आती थी, राइट। 160 GB आती थी, 320 GB आती थी, 500 GB और 1 TB के आने लगे हैं, राइट। द हार्ड डिस्क memory stores information on one or more circular platters or disks which are continually spinning. These rotating disks are coated with a magnetic material and stacked with the space between them. Information is recorded on the surface of rotating disk by magnetic heads and as tiny magnetic spots. The hard disk of today's have storage capacity measured in gigabytes and terabytes, right? सो डाटा जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर ट्रैक्स और सेक्टर्स के अंदर डिवाइड होता है और स्टोर होता रहता है, राइट। नेक्स्ट है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडीज और डीवीडीज। द कॉम्पैक्ट डिस्क और सीडीज आर ऑप्टिकल मीडिया विच यूज लेटर्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन। द सीडीज आर relatively cheap and have a storage capacity of up to 700 MB, right? DVD is an optical storage device that looks the same as a compact disc but is able to hold about 15 times as much information and transfer it to the computer about 20 times as fast as CD-ROMs. A DVD, also called the super density disc, can hold up to 17 gigabytes of data or 4 hours of movies on a side. Next thing is portable flash memory. Portable flash memories are also popularly known as the pen drives. A flash drive is a small ultra portable storage device with a solid state memory, that is, it has no moving parts unlike magnetic storage devices, okay, nor does it make use of lasers unlike optical drives. Instead, it works in a similar way to RAM. The key difference is that data is retained in flash memory even when the power is switched off. They are now fairly inexpensive, costing rupees 250 upwards. Typical size range from 4 GB up to 128 GB beyond. जो पेन ड्राइव्स वगैरह या जो फ्लैश मेमोरीज आती हैं आपकी वो 2 GB से लेके आजकल 128 GB तक आने लगी हैं। 64 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB। तो इस तरह से आपके पर पोर्टेबल जो फ्लैश मेमोरीज हैं वो आती हैं, राइट। नेक्स्ट आपकी है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको SSD बोलते हैं। A solid state drive is a new generation of storage device used nowadays in place of hard disk. Unlike mechanical hard disk, SSDs use flash-based memory which is significantly faster than older hard disk storage technologies and have RAM-like working mechanism. Thus, use of SSDs make computers significantly faster. अब क्या होता है, पहले ये वाली हार्ड डिस्क जो राइट साइड में आपको दिख रही है, इस तरह की हार्ड डिस्क यूज़ होती थी। आजकल के जो सिस्टम आ रहे हैं उनके अंदर SSD हार्ड डिस्क यूज होती है। हार्ड डिस्क हैं दोनों, बट जो SSD की स्पीड है वो मच फास्टर होती है हार्ड डिस्क से। सो आजकल जो है सिस्टम के अंदर SSD यूज़ हो रही हैं।
दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, और ये जिस तरह से पेन ड्राइव की टेक्नोलॉजी होती है ऐसे ही वो काम करती हैं। नेक्स्ट थिंग है ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क is also known Blu-ray or a BD is an optical disc, right? Optical disc storage media format. Its main uses are high definition video and data storage. The disc has the same dimension as a standard DVD or CD, while current optical disc technologies such as DVD और DVD आर डब्ल्यू मतलब रीड, DVD में केवल रीड हो सकता है, रीड राइट दोनों हो सकते हैं, एंड DVD रैम रिले ऑन ए रेड लेजर टू रीड एंड राइट डाटा। ए न्यू फॉर्मेट यूजेस a blue violet laser instead, hence the name Blu-ray. The benefit of using the Blu-ray blue violet laser is it has a shorter wavelength than a red laser, which makes it possible to focus the laser spot with even greater precision. This allows data to be packed more tightly and stored in less space. So it is possible to fit more data on the disk even though it is the same size of CD और DVD। मतलब CD और DVD की तरह ही होती है देखने में, लेकिन ब्लूरे डिस्क जो है वो ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी भी जो है आपका 128 GB तक आती है। और हाई डेफिनेशन डाटा स्टोर करने के लिए इसके अंदर 7-8 हॉलीवुड मूवी आप स्टोर कर सकते हैं एक ब्लूरे डिस्क के अंदर। तो ये सब आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं जहाँ पर आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हार्ड डिस्क के अंदर डाटा स्टोर होता है, DVD के अंदर डाटा स्टोर होता है, पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी यानी कि पेन ड्राइव के अंदर डाटा स्टोर होता है, आपका SSD हार्ड डिस्क के अंदर डाटा स्टोर होता है, आपका ब्लूरे डिस्क के अंदर डाटा स्टोर होता है। सो दीज आर द डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस वेयर वी कैन स्टोर अवर डाटा permanently. Okay, you know the storage devices are also called the secondary memory, the auxiliary memory or the external memory. यहाँ पर डाटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है, अगर पावर भी चली जाए तो फिर भी डाटा आपका सेव रहता है, राइट। नाउ यू कैन सी द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। 5000 BC यानी कि मैकेनिकल डिवाइस, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, कंप्यूटिंग डिवाइस जो है आपका अबेकस। अबेकस इज नोन एज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस मशीन, ठीक है। वो लकड़ी का बना हुआ होता था एक, उसके अंदर 2 पार्ट्स होते थे, रोड्स हैविंग रोड्स एंड बीड्स इनसाइड इट, उनको खिसका के जो है और जो है कैलकुलेशन का काम किया जाता था, दैट इज़ अबेकस, राइट। 1642 के अंदर ब्लेस पास्कल ने एक पास्कलिन मशीन बनाई थी जो कि क्या काम करती थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम करती थी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम करती थी, राइट। तो ब्लेस पास्कल ने 1642 के अंदर मशीन जो बनाई थी, कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका जो नाम दिया था दैट वाज द पास्कलिन, राइट। 1890 के अंदर सेंसस टेबुलेटर बना था जिसके अंदर मैकेनिकल टेबुलेटिंग मशीन, टेबुलेटिंग सेंसस डाटा, यूज पंच कार्ड, उसके अंदर पंच कार्ड होते थे और ये हरमन हॉलरिथ ने बनाया था। सो ये जो डिफरेंट पीपल्स हैं उन्होंने डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस बनाए हैं, ये सब उनकी डिटेल्स हैं, यू शुड नो अबाउट इट। 1940 और 56 के अंदर जो कंप्यूटर बने वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। बिग एंड क्लम्सी कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक फेलियर, लॉट ऑफ हीट, स्टोरेज, प्रोग्राम कंसेप्ट, मशीन लैंग्वेज, इनैक, एडवैक, एडसैक, यूनिवैक 1, इनको ये नाम दिए गए थे, राइट। सो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके अंदर ट्रांजिस्टर यूज होता था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच टेक्नोलॉजी वर यूज्ड इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सो यू शुड लर्न कि उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे, राइट।
तो ऐसी टेक्नोलॉजी, अब जो जनरेशन है वो इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है कि कौन सी टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज होती थी। दिस इज ए ट्रांजिस्टर, यू कैन सी। सो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आपके यूज होते थे। थर्ड जनरेशन के अंदर जो है आपकी जो कंप्यूटर जो है थोड़े स्मॉल साइज़ के थे, सेकेंड जनरेशन से फास्टर थे, ठीक है, मोर रिलायबल होते थे, लो पावर कंजम्पशन थी उनकी, हाई लेवल लैंग्वेज उसमें यूज होती थी, जो स्टोरेज कैपेसिटी थी उसकी 100 मेगाबाइट्स तक की थी। कंप्यूटिंग डिवाइस में कुछ कंप्यूटर जो बने थे IBM 360 सीरीज़ के, ICL 1900 सीरीज़ के, CDC 1700 सीरीज़ के, ये जो कंप्यूटर बने थे दे आर नोन एज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो IC यूज होती थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। वो यहाँ लिखी हुई नहीं है, आई एम टेलिंग यू। समटाइम्स क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड कि विच टेक्नोलॉजी used in third generation of computer, so you will write IC, integrated circuit, that is not written here in the book। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो माइक्रो प्रोसेसर यूज होती थी, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। आजकल जो भी कंप्यूटर यूज होते हैं उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर जो टेक्नोलॉजी है वो यूज होती है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो अभी भी चल रही है और आगे 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 आएगी, जो पैरेलल प्रोसेसिंग है, सुपर कंडक्टर्स उसके अंदर यूज होते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, ऑल डिवाइसेस एंड रोबोटिक डिवाइसेस, AI डिवाइसेस, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसके अंदर यूज़ होगा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के जो आएंगे, ठीक है। और यू कैन सी 1614 के अंदर जो है स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बोर्ड विद द मूविंग रॉड्स, जॉन नेपियर ने बनाया था ये 1614 के अंदर। यू कैन सी 1834, एक्चुअली 1833 के अंदर बनाया था एनालिटिकल इंजन बाय चार्ल्स बेवेज, जिसमें मैकेनिकल जो कैलकुलेटर उन्होंने बनाया था वो इनपुट लेता था, प्रोसेस करता था और आउटपुट देता था, स्टोरेज भी करता था। चार्ल्स बेवेज इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। याद रखिए, समटाइम्स द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, सो यू कैन से चार्ल्स बेवेज। अब सोचते हैं कि इतने लोगों ने सब कुछ बनाया तो इनको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने जो मैकेनिज्म दिया था हमें, मैकेनिकल कैलकुलेटर जो बनाया था, इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था, फिर इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। उसकी जो काम करने की जो टेक्निक थी वो इनपुट कर होता था, उसके अंदर प्रोसेस होता था, आउटपुट देता था, स्टोरेज करता था, और सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में यूज होती है वही सेम यूज होती है आज भी। सो दैट्स वाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, राइट। सो 1937 के अंदर जो है प्रोग्रामेबल मशीन बनी थी आपकी, उसमें एल्गोरिदम यूज होती थी। एल्गोरिदम का मतलब था कोई जो काम हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, दैट इज एल्गोरिदम। प्रोग्राम इनपुट थ्रू पंच कार्ड के थ्रू होता था और एलन टर्निंग ने इसको बनाया था, इसको टर्निंग मशीन बोलते थे। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। 1940 से 56 तक जो कंप्यूटर बने थे उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स, राइट। सेकेंड जनरेशन में जैसे मैंने बताया था आपको ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, तो ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं आपके। फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में इनका साइज जो है स्मॉल था। ट्रांजिस्टर्स आर रिप्लेस्ड बाय वैक्यूम ट्यूब्स। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे आपके उसके अंदर इंटीग्रेटेड, अच्छा यहाँ लिखा है साइड में, इंटीग्रेटेड सर्किट इसके अंदर यूज होती थी, ठीक है। ये आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। फोर्थ जनरेशन में जैसे मैंने बताया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI, जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, VLSI
लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसके अंदर यूज होते थे। पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है इनकी, जो डाटा है वो टेराबाइट्स के अंदर तक यूज होता है। और पेंटियम, पावर सी, AMD, एप्पल, ये सब आपके कंप्यूटर हैं। 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, अभी जो आगे कंप्यूटर बनने वाले हैं, आगे जो कंप्यूटर आएंगे, उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होगा। जैसे रोबोटिक्स जो बनते हैं, रोबोट्स जो बनते हैं, या रोबोटिक मशीन जितनी भी बनती है, उनके अंदर सबके अंदर AI का यूज़ होता है। AI का यूज़ करके जो रिसर्चर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से ह्यूमन बींग्स काम करता है, समझता है चीज़ों को, उसी तरह से हमारे कंप्यूटर भी काम करने लग जाए। और आप देख सकते हैं कि रोबोट जो है वो बहुत सारा काम करते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स। ओके, सो you can see the different generations of computer, that we can say the evolution of computer की पहले क्या बना था, after that क्या हुआ, after that एनालिटिकल इंजन क्रिएट हुआ, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, राइट। फिर आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आए जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ, राइट। देन आपका सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर जो है ना वो यूज़ होते थे। याद रखिएगा सारी टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन के अंदर IC इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन के अंदर आपका VLSI और प्रोसेसर, VLSI और वी कैन से प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज होती थी। 71 से अब तक के जो कंप्यूटर हैं वो आपके 4th जनरेशन के कंप्यूटर अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं। और 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर बन रहे हैं अभी, उनके अंदर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। सो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर to all of you about the evolution of computer, or what are the different storage units of computer, right? Thank you. So learn all the things carefully.